how do I manage this stress? We do not teach students how to take financial decisions. They're using their insecurities to make money. Gita is not a religious book. Gita is a. मतलब कोई स्ट्रेस नहीं होता था तब कि स्कूल जाना है, खाना खाना है. I feel boys to introvert बहुत अच्छे लगते हैं. आई एम वेरी नर्वस फॉर दिस एपिसोड क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस का गेस्ट पहली बार आया हमारे प्लेटफॉर्म में. तो एंड आई वांट टू डायरेक्ट दिस एपिसोड इन रिगार्ड्स टू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. सब कुछ अच्छे से हो तो वेलकम टू द शो मैम. Thank you so much, Swapnil. Thank you for having me here. हाउ आर यू फीलिंग? Oh, I'm feeling great. I'm so happy to see your setup, and whenever I'm with youth, I really feel very happy. So I'm really happy to see what all you are doing. Thank you. So today we have Dr. Aarti Chopra, founder and CEO of Articurve Training Services. She has a PhD in philosophy, a certified corporate trainer, a wonderful teacher, and the list goes on. And most importantly, a wonderful human being. Ma'am, as soon as you got into the studio, matlab, there was this energy and I wanted to learn a lot from you. आप आए तो ऐसे काफ़ी अच्छा लगा. अनुज ने आपकी तारीफ पहले से ही कर रखी थी एंड एज सून एज ही सेंड मी योर प्रोफाइल आई वाज लाइक कि प्लीज़ टॉक टू हर. हमको करना है पॉडकास्ट एंड हमारी ऑडियंस भी काफ़ी यूथ है तो विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. Thank you so much. Thank you, Swapnil, for saying this. Yes, how I feel that I carry that positive energy, and that is all because of my company with young generation. Because it's been 18 years, I'm teaching the students of aged between 19 to 22. तो एक वो अलग सा ही आप जब यूथ के साथ रहते हो तो यू गेट लॉट ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी. सो प्रोबेबली दैट इज द रीजन व्हाई आई आल्सो फील पॉजिटिविटी इनसाइड मी. मैम फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो अभी हमारा 2 दिन बाद ड्रॉप है. वी डू मंथली नए नए टी शर्ट नए नए पैंट्स वगैरह निकालते हैं तो 2 दिन बाद ड्रॉप है एंड देन आफ्टर अ वीक ऑल्सो वी हैव अनदर ड्रॉप. तो दिस मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप आई वॉज वेरी स्ट्रेस कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द पॉडकास्ट खत्म होते ही नेक्स्ट ड्रॉप की तैयारी करनी है फिर परसों कुछ और करना है. तो हाउ डू आई मैनेज दिस स्ट्रेस? So, Swapnil, about stress, the thing is there are two types of stress. One is your stress, that is a positive stress, Okay. and another is distress, that is a negative stress. So, your stress और positive stress is very important. Because see, अगर आप सोचें कि आज एग्ज़ाम है, किसी स्टूडेंट का बोर्ड एग्ज़ाम है या IIT का एग्ज़ाम है एंड ही इज़ नॉट स्ट्रेस्ड एट ऑल, तो वो तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि किसी स्टूडेंट को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो. या फिर आज आपके पास 4 काम है तो आपके पास ये स्ट्रेस रहेगा, टुडे आई हैव टू कंप्लीट दीज 4 टास्क. सो दैट इज़ अ गुड स्ट्रेस. बट द मोमेंट यू गेट a hint that the stress is getting into yellow zone or orange zone, that means आपका stress ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है या फिर you are not able to eat properly, then it is a signal that your body is entering into an orange zone or a red zone. वहाँ आपको थोड़ा सा meditation, exercise, और आप लोग तो बहुत sporty people हैं तो exercise and sports definitely help especially youngsters to reduce stress levels. Ma'am, like you said, you have been teaching for 18 years. So how has the teaching part evolved and how has the youth of India has evolved throughout these years? That is a very good question, Swapnil. I really would love to answer this and I would take some minutes to answer this. Because see, I have been teaching for past 18 years. So 18 years में मैंने इतना बड़ा transition देखा है students में. I started teaching in 2005. So in 2005 when I was teaching the students, there is a lot of change I see in the students between the students of 2005 and the students of 2023. The whole generation has been changed. Like from generation X to Z, the generation has changed. So there are some good changes and there are some changes which are not that good. So I'll talk about some of the changes. I'll not talk about the negative changes. I'll talk them about the characteristics. Like I'll take them as the characteristics. For example, मैं आपको अपना एक personal experience से ये बात share करूँगी. 2005 में जब मैं पढ़ा रही थी तो 2005 के students का अभी एक alumni हमने plan किया और उस एलुमनाई में वो स्टूडेंट्स आए जिन्हें मैंने 2005 में पढ़ाया था. दे ऑल आर वेल प्लेस्ड नाउ.
some of them are big business tycoons, some of them are CAs, some of them are corporate lawyers, so they are all well settled. So what happened when they invited us, when there was this alumni program, there was a bar also. So there was a bar set up. So obviously they all are adults, they are well settled, so they were having their drinks. But the moment we teachers entered that area to get a photograph clicked with those students, they made it a point that along with the teachers they will not have a glass in their hand. Okay. So some of them either kept it somewhere, or some of them had hide it like somewhere, and then they got a click with us. So there was in that generation that veil, that parda, that lihaz ka parda, that veil is still there, that these are our seniors, these are our teachers, so we have to have some kind of protocol with them. But the students in today's generation, I take them to educational tours also, and there they have the liberty to do anything, to have drinks and all. But they do not have this kind of veil कि हमारी teacher है तो हमें इनके सामने drinks नहीं लेना है. So what I mean to say here is कि जो पहले एक बच्चों में एक ये वेल होता था कि हमें बड़ों के सामने, टीचर्स के सामने we have to present an image that is positive. That kind of feeling is, I think it is vanishing. अब स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं we are as what we are, we do not want to change ourselves for everyone. But at the same time, Swapnil, I wish to add here, 2005, 6, 7 उन बैचेस में बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेशन में नहीं देखती थी अर्ली एजेस में. बट नाउ इन दिस जनरेशन अ पॉजिटिव चेंज विच आई एम सीइंग इज this generation is lot more conscious about their career and especially at young age. मतलब 10th 11th 12th तक आते आते ही बच्चों को पता है कि what all I have to do in life, so their targets are very clear. So this is the major change I have noticed. जैसे मैं अभी आपने बात करी कि इन 2005-6 स्टूडेंट्स काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे, तो अभी फ्यू पॉडकास्ट बैक अ साइकेट्रिस्ट केम ऑन अ पॉडकास्ट, तो शी हैज स्टडीड इन UK USA, तो शी सेड कि वहाँ पे दे कॉल देयर टीचर्स बाय देयर नेम, एंड वी हैड दिस आर्ग्यूमेंट कि वी टेल आवर टीचर्स सर मैम आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड आई सेड कि इट शुड बी देयर, क्योंकि अगर टीचर और स्टूडेंट में रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो फिर ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा. एंड शी हैड दिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि शी हैज स्टडीड इन, आई एम नॉट सेइंग शी इज़ रॉन्ग, बट शी हैड दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ, इफ़ यू कॉल देम बाय देयर नेम यू हैव मच फ्रेंडली वाइब. तो व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव? I feel, Swapnil, there has to be a balance. Like any other thing in this world, we have to strike balance. अगर हम लोग पहले की तरह बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि नहीं वो गुरुकुल पद्धति ही होनी चाहिए एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, तो वो भी अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि अलोंग विद द टाइम, अलोंग विद द चेंजिंग एरा, वी हैव टू अडॉप्ट द चेंजेस, क्योंकि इस दुनिया में चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट. अगर हमने चेंज को अडेप्ट नहीं किया तो डेफिनेटली विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ अभी वो वाला कल्चर नहीं है कि हम टीचर्स को वी कॉल बाय देयर नेम्स, एंड सो समहाउ वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. सो व्हाट आई फील हियर इज मोर देन अ टीचर, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या रिक्वायर्ड है, उन्हें एक मेंटोर की ज़रूरत है, उन्हें गाइड की ज़रूरत है. क्योंकि अगर आप देखिए, मैं क्लास में जाकर के सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रही हूँ, मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, मुझे लगता है मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाने वाले यूट्यूब पर अवेलेबल है. सो द स्टूडेंट्स हैव lot of options available just to go through the bookish knowledge. So more than a teacher, they need a mentor and a guide. So there has to be a balance where students do not treat teachers as their friends, but at the same time they are not scared of them. So there has to be a balance. Of course. Okay, तो I have this question, मैम स्कूल से ही था कि स्कूल में हम जाते हैं रेगुलरली, तो कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत अनॉयड रहते हैं, क्या पता उनके घर पे कुछ हो रहा होगा, वो आके अपना गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं. वेयर एज देयर आर टीचर्स लाइक यू जिनकी एनर्जी काफ़ी वार्म है, वेलकमिंग, एंड दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो ऐसा क्यों होता था कि टीचर्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते थे? Swapnil, again I would love to answer this question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप देखिए, sometimes when a person chooses the wrong profession, then it becomes a reason.
मान लीजिए कि मैं टीचिंग के लिए बनी ही नहीं थी और मुझे ज़बरदस्ती, और उस ज़माने में तो हुआ क्या करता था कि एक कॉमन सोच थी कि टीचिंग एंड बैंकिंग, मतलब बीइंग अ टीचर एंड बैंकर आर वेरी गुड ऑप्शंस फॉर अ वुमेन। तो ज़्यादातर पेरेंट्स बोलते थे कि अरे नहीं नहीं, बजाय गोइंग टू सम MNC और यू बिकम अ टीचर, बिकॉज टीचर गेट्स लॉट ऑफ हॉलीडेज। दैट वाज अ परसेप्शन इन दोज डेज। तो जो नहीं चाहती होंगी टीचर बनना, वो भी शायद टीचर बन जाते थे, क्योंकि टीचर बनने के लिए टीचर इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशन वेयर you need to have, first thing is you should be little extrovert means you should know how to speak publicly. Secondly, you should have this love and warmth and care for the younger generation. तो हो सकता है कभी कभी कोई रॉन्ग करियर चॉइसेस नहीं हो जाते, आपके स्पोर्ट्स में भी हो जाते हैं या फैशन इंडस्ट्री में भी हो जाते हैं, या कभी कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करके बच्चे को कि नहीं तुम्हें तो सिविल सर्वेंट ही बनना है, तो probably some of them were not meant to be teachers, but they came in this profession by chance. So and obviously आपके टाइम से नहीं है, हमारे टाइम से चला आ रहा है कि जब कोई टीचर बहुत खड़ूस हमें दिखती थी तो हम बोलते थे कि आज घर से लड़कर आई है। तो बच्चों पे निकलेगा गुस्सा। और पहले तो पिटाई भी हो जाती थी, अब पिटाई नहीं होती। राइट। सो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टीचर्स को दे हैव टू think twice before coming to this profession, because this profession requires lot of empathy and love towards the younger generation. Lot of empathy is required, I feel. Yeah. As a kid, मतलब मैं नहीं, सारे बच्चे when they want to grow older fast, मतलब कोई 13-14 साल का बच्चा है, they want to be 26-27, क्योंकि they think they'll have that freedom कि कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी भाग सकते हैं. But as I have grown older, the responsibilities also grew. True. So what advice would you give to that 13-14 year old, and what advice would you give to me being a 26-27 with responsibilities? Right. So the advice I would give to the child who is 13-14 years old, the same advice is for the young people like you who are 25-26, and the same advice goes for middle-aged people like us in their 40s, and the same advice is for the 60s or 70s. What is that advice? The advice is every age has its own charm, and every age has its own positives. Every age has its own status things to enjoy. So whatever age you are in, please enjoy that age, because whatever you are getting in this age, you may not get it once you see you are so young. Once you get married, once you get into, you are earning, but once this earning part becomes your responsibility for your family, the way you think, the way you will move in society will definitely change. So I will tell the child of 13-14 years that this is the age which has been given to you, and which you have received only once in the whole lifetime. So try to enjoy this age, and definitely this is a natural process. You will grow older, you will come to your 20s, you will come to your 30s. So every age has its own charm. So sometimes people ask me that, ma'am, whether you want to become again you want to become young. I say no, because I have already enjoyed the charm of that age. Now I am enjoying the charm of this age. Probably the kind of respect I get in this age, I may not have received that respect in that when I was very young. So every age has different respect, different status, different enjoyment. So we should enjoy every phase of our life. But I would still want to be a 14-15 years old, ma'am, to like kicking around football. मतलब कोई स्ट्रेस नहीं होता था तब कि स्कूल जाना है, खाना खाना है, खेलना है, पढ़ना है, अगले दिन वापस उठना है, खाना है. अभी तो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है चीज़ें करने का. राइट, दैट वे यू आर राइट. बट ये है कि आजकल आप 13-14 इयर्स के बच्चे को देखेंगे ना, उसको भी बहुत स्ट्रेस है. इसी से मेरे को याद आया मैम कि हाँ, जैसे आपने बोला स्ट्रेस है, तो द 20-21 ईयर्स ओल्ड उनको लगता है कि दे आर फेलियर अगर उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद को बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे कंपेयर कि वो 20 का है तो कोई 22 साल की उम्र वाला बहुत कमा रहा है, 22 वाला सोचता है 26 वाला बहुत कमा रहा है, तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्फ और उनको लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं. वेरी ट्रू. और यहाँ मैं आई वॉन्ट टू गिव माई इनपुट हियर कि मुझे ऐसा लगता है, और ये कुछ डेटा भी हैं, कि मेल
जो यंग एज में मेल हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बिकॉज सी दीज डेज मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर वर्किंग, बट फॉर मेल्स हमारा जो ये सोशल स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना करके देता है कि मेल हैव टू अर्न फॉर देयर फैमिली, फॉर द लाइवलीहुड ऑफ देयर फैमिली, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। प्लस हमारे यहाँ मेल को ऐसा भी सिखा दिया जाता है कि दे डू नॉट हैव टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस मच, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइवलीहुड, प्लस they do not have to cry, they do not have to express their emotions. This combination gives a lot of stress to male youth, and that is really a matter of concern. And secondly, एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सोशल मीडिया से जो कंपैरिजन है, आई विल नॉट टेक द नेम बट आई एम टेलिंग यू वन एडवर्टाइजमेंट। एक मैं अपने सेशंस में बहुत ज़्यादा ये एडवर्टाइजमेंट दिखाती हूँ। एक फेयरनेस क्रीम की एडवर्टाइजमेंट है जिसमें द गर्ल इज डार्कर and then she's putting a cream, then she's becoming fair and lovely. And then she gets, you know, she becomes fairer week by week. But the thing is, this doesn't bother me that she's putting a cream and she's becoming fairer week by week. What bothers me in this advertisement is, if you'll observe that advertisement carefully, you will see that the girl is not smiling when she is dark, and the way she, you know, starts getting fairer, the smile comes in. increases. So that means this way these advertisements are giving message to the youth. Here I'm talking about girls specifically, that the you know, remote of your happiness lies in your beauty. So if you are beautiful, you'll get a good job, you'll get a good boy, you to get married, and you'll get every success in life. If you are not beautiful, you'll not get success. So this is something which is giving lot of stress to youngsters, but youngsters have to understand that this is all a real life, that is not a real life. So that is all scripted, that is not the real life. They're using their insecurities to make money. अगर ऐसे कल्पना चावला और इतनी जो हाई पोजीशंस पर पहुंचे हुए विमेन भी ऐसे सोचते, तो फिर आज तो हम बस क्रीमें ही लगाते रह जाते और कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो सोशल मीडिया, मतलब उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे आपने बोला अभी इनसिक्योरिटीज़ और उनका फ़ायदा उठाते हैं, वही एडवांटेज है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यूथ के पास, नॉट ओनली यूथ, किसी भी एज के पास, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं फॉर प्रोफेशन, जॉब्स, एक्स वाई जेड। वेयर एज पहले देवर ओनली सेट प्रोफेशन, लाइक यू सेट कि वुमेन को बैंक में या फिर टीचर, बॉयज़ होते थे तो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। वेयर एज अभी तो काफ़ी फ़ायदा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सोशल मीडिया के बहुत एडवांटेजेस है। फर्स्ट थिंग इज यू हैव लिबर्टी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। उससे भी बहुत ज़्यादा आप यू नो, यू कैन वेंट आउट, बिकॉज आपके अंदर इतना कुछ है, देर इज़ नो वन टू लिसन, यू कैन वेंट आउट थ्रू सोशल मीडिया। प्लस यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत सारे अनकन्वेंशनल professions have come up for youth, so that is the positive part. So everything in this life has a positive aspect and a negative aspect. It depends upon us that how we choose the positive aspect out of that. So we must try to take out all positives of social media. And one more thing is lot of distraction social media gives. So वो हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एक डेटा है स्वप्निल, यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि जो हमारा फ़ोन होता है जिसमें एक साइड बटन होता है जो कि फ़ोन को ऑन या ऑफ करता है, जो लाइट देता है फ़ोन को, द ग्लोबल रेशियो, जो पूरे वर्ल्ड वाइड रेशियो है, दैट इज़ 45 टाइम्स। यानी एक दिन में एक इंसान 45 टाइम्स अपनी उस बटन को दबाता है ग्लोबली। लेकिन इंडिया में ये रेशियो 150 है, मतलब 150 टाइम्स ऑन एन एवरेज हम उस बटन को दबाते हैं। तो चाहे कुछ भी नहीं आया है, वी आर ऑलवेज ईगर टू सी कि कोई मैसेज तो नहीं है, कोई, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बट सोशल मीडिया हैज लॉट ऑफ मेरिट्स ऑल्सो। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी चूज द मेरिट्स एंड वी ट्राई टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। Yes, ma'am, totally. So you're a corporate trainer as well. Could you please explain us what exactly is it? Yes. So what happened actually, I was teaching for 18 years. Then I noticed there is a lot of gap between the skill set which is required by the industry and between the students they possess. So there is a lot of skill gap.
these days when students go for they are good, they are qualified, they're MBA from good institutes, they go to MNCs, but then MNCs say no, they do not have the skill sets which we are looking for. So I found that there is a lot of gap. Students are MBA, but they do not know how to use Excel. They do not know how to work on the basic Microsoft tools. Then they do not have communication skills. Why? It is not their fault, it is our fault, it is the system lacuna. It is the lacuna of the educational system. We do not teach students how to take financial decisions. We do not teach how to take how to make good decision, then how to take critical decisions, how to develop critical thinking, creative thinking. We do not teach them. So after they complete their post graduation also, they are still finding it difficult, and they are still finding it challenging to take the decision to file their income tax return, or to to take the creative aspects of the life. So this is a system lacuna. So I was feeling that there is a lot of skill deficiency in our youth. So that way I got attracted towards training. So I became a corporate trainer. I researched and I found lot of good courses related to corporate training, which includes conflict management, teamwork, personality development, communication skills, then conflict and time management, stress management, then change management. So there are so many things which young generation has to learn. So I studied about it. I did some of the best certifications in the world, and I loved it, and I started my own entrepreneurship journey at this age. And what are you enjoying more, teaching or training? So it is like a question that teaching is my first love. मेरे दो बेटे में से कौन ज़्यादा प्यारा है? Pick one. Very true, very true, very true. So teaching is my love. That's my first love. क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो मम्मा की साड़ी लेकर के और ड्रेप करके कि मैं टीचर हूँ, मुझे बचपन से ही बड़ा शौक था, और ऐसे एक इमेजिनेटिव, एक फिक्टिशियस सी क्लास में बना लिया करती थी कि हाँ बच्चे अब पढ़ लो, अब ये पढ़ लो. तो इट इज़ माई फर्स्ट लव. आई थिंक आई हैव बीन टीचिंग व्हेन आई वाज 6 or 7 years old. तो मम्मा की साड़ी पहनकर फिक्टिशियस क्लास को मैंने तब से पढ़ाया है. So that is my first love that I can never leave. But yes, training is my baby, because I have given I have given birth to this Articurve. Articurve is an institution, that is an MSME registered organization which I have started for corporate training. So that is my love and that is my baby. So both are very very close to my Hard to pick heart. one. Hard to pick one. एक दूसरा नाराज हो जाएगा कोई. Right. तो मैम, people struggle a lot with their job. मतलब किसी को इम्प्रूवमेंट करना है, किसी को मज़े नहीं आ रहे. अगर कोई कॉर्पोरेट में है, उसका बॉस उसको लग रहा है बहुत कुछ कर रहा है, बॉस अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उसको नेक्स्ट जॉब में जाना है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम कि, और उन्होंने जॉब छोड़ दी तो घर से ताने आएंगे, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है तो उनको कमाना ज़रूरी है वरना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो उस सिचुएशन में वो एम्प्लॉय क्या करे? बिल्कुल स्वप्न, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि इन एम्प्लॉयज़ की बजाय मैं उनके बॉस को ज़्यादा देना चाहूँगी ट्रेनिंग कि भाई क्यों नहीं अप्रिशिएट करते हो. ज़्यादा मत बोलना, वो भी मेरे से आके लड़ लेगा अभी कि मैम ने बोला था ना ऐसा. No, appreciating is very important, I feel. Because see, training is not only for youth or for the people who have just entered into industry. I give training to all the levels. तो जिसमें एक लीडरशिप लेवल ट्रेनिंग अलग होती है, जिसमें लीडरशिप लेवल पर हम यही सिखाते हैं कि you should appreciate your employees, your the people working under you. So first thing in this regard is appreciation is very important. आप देखिए जापान में एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर उन्हें किसी को वो करना होता है, मान लीजिए कोई ट्री को हटाना है, तो वो ट्री को काटते नहीं है, दे डू नॉट कट द ट्री, वो ट्री को डेली कर्ट्स करते हैं, और एवरी डे व्हेन दे कर्ट्स द ट्री, कुछ दिनों के बाद वो ट्री अपने आप ही मुरझा जाता है, रादर जल जाता है. सो हमें ये समझना पड़ेगा कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल नीड अप्रिसिएशन.
तारीफ के दो बोल बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं. इन माई लीडरशिप ट्रेनिंग्स आई ऑलवेज टेल द लीडर्स दैट यू शुड appreciate your employees, the people who are working under you, your team. It is very very important. Then it comes to the employees, जो आपने कहा कि वो लोग बहुत frustrated हैं, they are not happy with their jobs, but then also they have to It is a be in the necessity. job. It is a necessity. So there are 2-3 things they can do. First thing is, if they are very young and if they have option to experiment, in spite of just putting or sticking to just one job, they can try for another option. Because if they are very young, if they do not have any kind of this financial obligation on them, they can try. But if it is like that, they can do better with, first thing is upskilling. अगर हम अपने आप को upskill करते रहते हैं, we feel very very confident with time. And secondly, communication with their boss, with their superior is a very important thing, which will play a very important role, very significant role. Because मुझे लगता है कोई भी दो जनों में जो प्रॉब्लम है, चाहे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट में हो, चाहे वो दो फ्रेंड्स में हो, lot of things can be solved with constructive communication. And here we are lacking. We do not communicate. हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है, we make an image for that person and we stop talking to that person. In spite of that, try to resolve the issues. Conflict management करने की कोशिश करें. Try to resolve with communication. This happened with me as well. जब मैंने मतलब start किया था entrepreneurship journey, तो in the beginning when I hired people, तो आई यूज़ टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि ये काम दिया, ये हुआ क्यों नहीं, इसे काम दे दिया तो होना ही चाहिए ना, तो काफ़ी गुस्सा हो जाता, तो उसकी वजह से किसी को फायर भी किया. बट द लेटर इन द जर्नी आई रियलाइज कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन, और मैं जो बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली उनके दिमाग में नहीं जाएगा. यू हैव टू सिट डाउन, अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो दिस ऑल्सो कम्स विद टाइम ओनली. कि इन द बिगनिंग आई वॉज लाइक कि नहीं ये बोला तो क्यों नहीं हो रहा. नाउ इट इज़ लाइक कि नहीं हो रहा तो बैठ के इसको सोल्यूशन निकालते हैं. दैट्स वाई मतलब टाइम के साथ आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग. राइट, ऑब्वियसली. सो एज आई टोल्ड, एज के साथ हमारी मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ता है और हमें समझ आता है कि जो परसेप्शन हमारा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन विल हैव द सेम परसेप्शन. द थिंग्स वी आर सीइंग, जैसे वही 6 और 9 वाली बात है कि कोई कहे सुंदर, कोई कहे असुंदर, अपना अपना चश्मा भैया, अपना अपना नंबर. तो 6 और 9 वो अमिताभ बच्चन वाली जो हम फिल्म देखते हैं कि इफ आई एम सीइंग 6 एंड यू आर सीइंग 9, वी बोथ आर राइट. It is only the places we are sitting, we have different perceptions. So people will come from different backgrounds. जब आप अपनी टीम बनाते हैं, स्वप्निल, तो हर कोई सेम बैकग्राउंड से नहीं आता. People will come from different educational backgrounds, people will come from different financial backgrounds, from different educational backgrounds, and different kind of bringing up. So when they come to you, they have different kind of mental status. तो लेकिन हमें काम किसके लिए करना है? एक ऑब्जेक्टिव के लिए. दैट इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. तो आपको उन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा. अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ मेरे जैसा सोचने वाले लोग मिल जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे. लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आपने उन्हें डांटा या फायर भी किया, दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग फॉर देम. क्योंकि मुझे भी लगता है, मैं हमेशा से तो कोई किसी कॉलेज की प्रिंसिपल नहीं थी, या हमेशा से तो कोई किसी कंपनी की फाउंडर नहीं थी. व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, आई वाज आल्सो अमंग द बी ग्रेड टीचर. तो मुझे लगता था मुझे तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं करता, मुझे तो यहाँ कोई समझता ही नहीं है, मुझे तो, मेरे अंदर इतना टैलेंट है पर ये लोग तो दे आर नॉट एबल टू सी माई टैलेंट. बट मुझे आज लगता है कि वो स्टेज भी बहुत ज़रूरी थी मेरी लाइफ के लिए, बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट स्टेज. सो डेफिनेटली पीपल अंडर यू, अगर आप उन्हें डांटेंगे भी तो दैट इज ओके, दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस प्रोसेस. डांटो बट इन अ प्रॉपर वे, उनकी साइड भी समझ के. राइट, राइट. तो मैम, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ लीडर टू बी पॉजिटिव? Oh, it is very important. It is as important as every day we have to see sun. Because one day there is no sun, we get so cranky, we get, oh God, अब हम कपड़े कहाँ सुखाएंगे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो विमेन के देखो सबसे बड़ा यही एग्जाम्पल आता है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू बी वेरी पॉजिटिव. लीडर हैज़ लॉट ऑफ क्वालिटीज़. जब हम पढ़ते भी हैं या पढ़ाते भी हैं मैनेजमेंट में, तो हम बात करते हैं what all qualities a leader should have. So leader should have patience, he should have empathetic skills, he should have listening skills, but the most important quality a leader must have
इज पॉजिटिविटी. एंड पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा एक जो थियोरी है वो ये है कि मान लीजिए कि मैं नौकरी करती हूँ और सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है और मंडे को कोई फेस्टिवल है उसकी छुट्टी है, तो मैं फ्राइडे इवनिंग कैसा फील करूंगी? मैं फ्राइडे इवनिंग बहुत पॉजिटिव फील करूंगी क्योंकि अगले 3 दिन वाओ मजे करने हैं. सो द सिचुएशन इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी पॉजिटिव. लेकिन मान लीजिए अगर हमने एक ही साल में कोविड, डिफिकल्ट माइग्रेशंस, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, लोकस्ट अटैक्स, डेथ, सुसाइड, कितने केसेस हमने 1-1.5 साल में सुने थे. 2020, 21 देयर वाज डिफिकल्ट ईयर्स. अगर ऐसे में मैं आपसे कहूँ कि पॉजिटिव रहिए, सो दैट कॉल्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहना तो बहुत आसान है, लेकिन नेगेटिव सिचुएशंस में अपने आप को काम डाउन करके पॉजिटिव रहना is one very important thing which every leader has to learn. Definitely, ma'am. Also, overperformance, overdoing it, never satisfied, always on the clock. और कुछ नहीं हो रहा था, always feeling कि यार I can do more, I can do better. तो how can we turn it off? And is it a good thing to turn it off and take a step back and be like, हाँ? See, in this regard, my feeling is sometimes perfection becomes your enemy. Because see, perfection is good, but sometimes for perfection you're getting so much stressed, and not only you are getting stressed but जो आपके आसपास के लोग हैं, आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आप उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और नेगेटिव बना दे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका आउटपुट और कम हो जाए. आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा आउटपुट आना चाहिए तो वो और बल्कि ख़राब हो जाएगा. सो इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग अ परफेक्शनिस्ट कि ये मैंने सोच लिया यही होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग दैट, ट्राई टू टेल पीपल दैट they should try to become a better version of themselves with every passing day. तो आज मैंने सपोज थोड़ा कम किया है, अगर मैं कल अपने किए से भी 1% बेटर कर पा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन. अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे आज मैंने खराब किया, कल मुझे 100% ही चाहिए, ओवर परफॉर्मेंस चाहिए, इट मे लीड टू मेंटल डिस्ट्रेस. एंड इन लॉन्ग टर्म इस मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से मुझे ये आउटपुट तो नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो भी कल को ना कर पाऊँ. तो वी मस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट जो प्रोग्रेस है या जो सक्सेस है वो एक दिन में नहीं हो सकता. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो नथिंग कैन बी अचीव्ड ओवरनाइट. अगर आप अपने आप को भी रोज 1% बेटर कर रहे हैं ना, सो दैट इज आई थिंक गुड टू गो. परफेक्शन के पीछे हमेशा नहीं भाग सकते हैं. और अगर फिर भी जैसे बहुत करने के बाद भी इफ़ यू डोंट फील सेटिस्फाइड, तो हाउ डू वी स्लो इट डाउन? So for slowing it down, no, most important thing is being mindful. I feel that people are not mindful these days. हम हमेशा क्या करते हैं, either we are living in our past or we are living in our future. We are not living in present. So what we should try to live in present. जो हम कर रहे हैं ना उसको हम बहुत अच्छे से करें, बजाय कि ये सोचने के कि इसका आउटपुट क्या आएगा. और ये तो आपको हो सकता है कि बहुत बड़ों जैसी बात लगे, बहुत प्रवचन जैसी बात लगे, लेकिन आपको पता है कि गीता जो है, गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, गीता इज अ मैनेजमेंट बुक. इट टीचेस अस लाइफ मैनेजमेंट. और गीता में तो ये कहा ही गया है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो. तो ये माइंडफुल होना ही तो है. तो स्लो डाउन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन in our life in present. अभी जो हमारी लाइफ में चल रहा है, be mindful on that. In spite of thinking a lot about what all we will get in future, इसका क्या बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है वो सोचने की बजाय, या पास्ट में हमसे क्या मिस्टेक्स हुई है वो सोचने की बजाय, be mindful and try to live in present. So that will give you lot of calmness. I'll try to execute it. So ma'am, as a teacher or trainer, what beliefs do you go by shaping someone's life? क्योंकि आपके हाथ में, सर में, शरीर में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बच्चा हो, a teacher is like second mom.
काफी बार बचपन में बोल भी देते थे टीचर को मम्मी। मम्मी बोल हाँ, देते, तो बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव दैट कंट्रोल पावर कि यू कैन गाइड देम, डायरेक्ट देम, एंड सेम विद एज अ ट्रेनर एज वेल, यू कैन गाइड अ एम्प्लॉय, बॉस वगैरह सबको कि कैसे लाइफ में आगे जाना है। तो व्हाट आर योर बिलीव्स ऑन इट? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। और अभी तक भी स्वप्निल, अभी तक भी जो हमारा व्हाट्सएप या टेक्स्ट का जो ऑटो टाइप होता है वो मैम को कई बार मम्मा टाइप कर देता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी भी ये मानती है, और ये फैक्ट है। मैं आपको अपने 18 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। द पर्सन हु विल बी most happy with your achievements after your parents will definitely be your teacher. I am 100% sure on it. I am not sure for the relatives, but I am sure after your Teachers होंगे। parents, after your mother and father, the person who will be unconditionally happy when you attain success is your teacher. She feels lot of proud, she or he feels lot of, rather they take pride in telling, you know, he is my student, she is my student, and she has achieved this thing, he has achieved this thing in life. तो मेरा तो शुरू से ही 18 साल पहले से ही यही बिलीफ रहा है कि मेरा जो बच्चों के साथ डील करने का, एक बच्चे कह रही हूँ पर होते वो बहुत मतलब दे आर एडोलेसेंट, दे आर यंग जनरेशन, उनके साथ डीलिंग का मेरा हमेशा से यही मेथड रहा है कि आई बिकम वेरी वेरी empathetic with them. I try to think from their perspective. I try to put my feet in their shoes. हमेशा से मेरा ऐसा रहा है कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब कुछ इंस्टीट्यूशंस में इट वाज नॉट अलाउड to share your mobile numbers with the students. It was not allowed to talk to students personally. There was a policy that you have to maintain a distance because they are your students, they are not your friends, you have to maintain the distance. पर कहीं ना कहीं स्वप्निल मुझे तब भी ये लगता था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये सही नहीं है, एंड इट विल चेंज विद टाइम, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। इट चेंज्ड विद टाइम। मुझे ये लगता था कि अगर मैं स्टूडेंट्स के साथ अपना नंबर ही शेयर नहीं कर पा रही हूँ, अगर स्टूडेंट्स मुझे किसी भी डिफिकल्ट टाइम में कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इफ आई एम नॉट अप्रोचेबल, व्हाट इज द नीड ऑफ मी बीइंग अ टीचर? उनको तो सिर्फ एक किताब चाहिए जो क्लास में आकर के उन्हें पढ़ा करके चली जाए। सो माई strategy and my belief is, first thing is the teacher or trainer must be approachable. So that means whenever your student or your trainee wants to be connected with you, you should be available. There may be constraints like I tell my students I may not be able to pick up the call. Suppose अभी मैं आपके साथ podcast में हूँ, somebody is calling me, I'll not be able to pick up the call. पर मैं हमेशा students को कहती हूँ you can always leave a text message for me so that whenever I'll be free I'll be replying you back. So that means first thing is you have to be empathetic. You have to be approachable. कोई फायदा नहीं है अगर आप सिर्फ क्लास में आए और एक तरफा लेक्चर दे करके, ज्ञान दे करके चले गए। वो बच्चों को आजकल बहुत मिल रहा है, यूट्यूब पे बहुत ज्ञान है। तो आपको, आप में उनको एक मेंटोर चाहिए, एक अप्रोचेबल पर्सन चाहिए। जो बात वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पा रहे, दे शुड बी एबल टू टेल यू। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज you should listen to them without getting judgmental. You don't have to be judgmental. जैसा आपका बच्चा है या जैसा आपकी लाइफ रही है, ज़रूरी नहीं है आपके हर स्टूडेंट की वही। I never judge my students. Whatever they tell me, I feel this is a world. 100 तरीके की बातें होती हैं, उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो never judge them. Listen to them without any judgmental mindset. So that is very important. Yes, ma'am. And a lot of people are driven by their insecurities. मतलब उनकी इनसिक्योर, वही उनका फ्यूल होता है मोटिवेशन के लिए। तो इज़ इट अ गुड थिंग इफ़ यू आर फ्यूल्ड बाय योर इनसिक्योरिटीज़ और उनकी वजह से यू आर मोटिवेटेड कि ये मेरी कमियां हैं, इनकी वजह से मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा? इज़ इट अ गुड थिंग, बैड थिंग? See, moving towards success is good thing, but आप मोटिवेटर अपना इनसिक्योरिटी रखें, आई फील दिस इज नॉट द राइट वे टू मूव इन लाइफ, बिकॉज दिस वे wherever you reach you'll never be contented, you'll never be happy, because those insecurities will always move with you. So I feel
moving towards progress, moving towards success is very important, but do not make insecurity as your motivator. Rather, celebrate the small targets which you have achieved. तो छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते जाइए कि अरे वाह आज मैंने बहुत अच्छा काम किया. सो डोंट बी इनसिक्योर फर्दर मैं ये कर पाऊंगा या नहीं. अगर आप सिर्फ छोटे छोटे टारगेट्स को भी सेलिब्रेट करते हुए चलेंगे तो you will be able to move in the right direction of success, but not along with your securities, because this way you will not be contented. And being contented is very important. देखिए आजकल स्वप्निल कोई एंड ही नहीं है. there is no end to anything. आज अंबानी इसको भी शायद ये लगता होगा हमारे पास कम पैसे हम और कमा लें, तो कोई एंड तो है ही नहीं. तो आपको क्या सीखना पड़ेगा लाइफ में? वी ऑलवेज हैव टू लर्न टू बी कंटेंटेड. सो आई फील ये क्वालिटी मैंने समय के साथ बहुत अच्छे से डेवलप की है. एंड आई थिंक स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स दे somehow develop this quality that they learn to be contented in whatever small successes they are achieving day by day. बाकी तो फिर insecurities के साथ चलेंगे तो the list is endless, never ending. Right. How many people have you trained throughout your career? That is a big number. But अगर मैं tentatively आपको कहूँ तो probably 15,000 students I have taught and around 5,000 people I have trained. Okay. Who are not actually my students, but I have trained them through various platforms. Any success stories you would like to share? हाँ, there are many. अब पता नहीं मुझे अभी एकदम से क्या क्या याद आए, लेकिन there are many success stories and they fill lot of energy in us. तो बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ कर पाए. एक छोटा सा कुछ समय पहले का ये एग्जाम्पल याद आ रहा है. हुआ क्या कि I just came out of staff room. I was working with one of the most elite institutions of Pink City. So I just came out of staff room and I saw there was a boy standing out of office area. And he was asking for a TC, a transfer certificate. And I knew that boy was studying in the first year. Last year I taught him first year. And I asked him, what happened? Why are you asking for TC? And he said, ma'am, this is my result. I have failed in first year. So there is no point of studying further. So I am taking my TC and I am going back to my, like he belonged to some other place. So I'm going back to my hometown and I will now work with my father. I will join his business and I will not study anymore. So it was like, I don't know what happened from within. And I, called him. I said, please you come to me. I held his hand and I said, I request you. I'm your teacher. If you have even a single person respect for me in your heart, I request you to please not to leave your studies, to carry on with your studies. See, because there is a rule in most of the universities, including Rajasthan University, that if you fail in a particular year, next year if you repeat the same year, you will not have to pay the college fee. You will not have to pay the college fee. That's a rule. So I told him, I said, you don't have to pay the college fee again. Yes, you obviously the year cannot be brought back, but you will not have to pay the fee again. So when you don't have to pay the fee again, it is just the exam you have to take. So why don't you do it for me? And I promise you that I will provide you all necessary help, notes, everything I will provide you, but you do it for me. And I, empathetically, I was with him only throughout the year. I used to call him, I used to be with him. And after a year, he cleared first year with flying colors. And then there was no looking back. Second year, third year, and then he's like, he tells me that, ma'am, I have graduated because of you only. Because that day, अगर आप स्टाफ रूम से बाहर आकर मुझे नहीं पकड़ते, मुझे नहीं देखते, मैं तो टीसी लेकर चला जाता. तो मुझे लगता है कि मैंने तो उसे बहुत प्यार से ऐसा भी समझाया कि सुनो, आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, दैट इज गुड, पर जब शादी करोगे अच्छा लगेगा, लोग बोलेंगे लड़का 12th पास है, अच्छा लगेगा ना, लड़का ग्रेजुएट है इतने अच्छे कॉलेज. मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ. मैं भी 12th पास ही हुआ. तो सी बिजनेस इज वेरी गुड. उसके भी फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है. तो मैंने तो उसे मोटिवेट करने के लिए मेरे मन में यही बात आई. मैंने कहा देखो एक अच्छी सी लड़की मिलेगी तो लड़की को बताना पड़ेगा. तो वो थोड़ा somehow he got motivated with this sentence. मेरी मम्मी भी यही बोलती है. किसी के पास जाएंगे तो बताएंगे तो ना. तो बस स्वप्निल यही
बात है कि एक बस आपको मोटिवेशन देने के लिए, देखो हमने एक सुंदर लड़की आपको इमेजिनेशन में दे दी ना मोटिवेशन, तो बस उससे मोटिवेट हो गया वो बच्चा भी। वैसे कॉलेज घटा तो ऐसी कई, अच्छा उसके अलावा एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं मेरी स्टूडेंट्स who get married in a very early age। हमारे मतलब राजस्थान में तो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत जल्दी एज में लड़कियों की शादी कर देते हैं, तो वो लोग पढ़ नहीं पाती हैं, और उसके बाद शादी के बाद अगले 5-7-8 साल उनको याद भी नहीं आता, क्योंकि दे गो टू न्यू फैमिली, दे ट्राई टू एडजस्ट, देन दे हैव 1 baby, दे हैव 2 babies, then they don't, after 7-8 years suddenly they realize that what all I have lost in life because of early marriage। So then they call me, many of them they call me, ma'am, this is the thing, I want to restart, I want to study again, can I do masters now, I left after graduation or I left after 12th, can I study now? So I try to give every possible help to these girls, because I feel these girls are सो फुल ऑफ लाइफ कि वो 2 बच्चों के बाद भी या शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी दे वांट टू कम बैक टू स्टडीज़, सो आई ट्राई टू रेंडर ऑल माय असिस्टेंस टू दीज गर्ल्स। तो ऐसी भी बहुत स्टोरीज हैं जहाँ पे गर्ल्स ने पढ़ाई छोड़ के और 7-8 साल के बाद वापस दे स्टार्टेड, एंड नाउ दे आर एट वेरी गुड पोजीशंस इन गुड कंपनीज। सो आई फील वेरी good, I feel very happy when they see them, when I see them सक्सेसफुल। Yeah. ये तो मैम सक्सेसफुल जो मोटिवेटेड हैं वो कर लिए, दे आफ्टर 7-8 years भी दे वर मोटिवेटेड इनफ टू डू इट। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेजी एम्बिशियस पीपल, जिनके पास एम्बिशन बहुत बड़ा है, मुझे लाइफ में ये करना है वो करना है, बट दे आर वेरी लेजी टू अचीव देयर गोल्स। और आई नो फ्यू पीपल लाइक लेजी एम्बिशियस पीपल जो इवन देयर सराउंडिंग्स, वो सबको दे ट्राई टू ड्रैग देम डाउन कि मैं नहीं कर रहा तो तुम भी मत करो, तुम भी रुक जाओ, बट दे हैव लाइक ड्रीम्स टू बिकम अंबानी, बट उनको घर से भी बाहर नहीं निकलना। तो व्हाट वुड यू से टू देम? वेरी ट्रू, आप जो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, दे आर सो प्रैक्टिकल दैट वी सी दीज काइंड ऑफ पीपल अराउंड अस, क्योंकि आगे बढ़ने के 2 ही तरीके हैं। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे पास 2 ही तरीके हैं, कि या तो मैं मेहनत करके आगे बढ़ जाऊं, बहुत अपने आप को फोर्सफुली, ऑब्वियसली आई हैव टू पुश माई सेल्फ हार्ड, या फिर मैं अपने से आगे वालों को पुल कर लूं, तो जैसे ही मैं उन्हें पुल करूंगी मैं ऑटोमेटिकली उनसे आगे हो गई। और अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी वी सी लॉट ऑफ पीपल पुलिंग अदर्स रादर देन पुशिंग देमसेल्व्स टुवर्ड सक्सेस, तो ये प्रॉब्लम तो है। और जो लेजी एम्बिशियस पीपल है उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट विच हैज़ बीन मेड ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, कितना भी स्मार्ट वर्क पे हम फोकस कर रहे हैं, पर हार्ड वर्क का देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। सो इफ यू आर एम्बिशियस, there are many factors that play. Obviously sometimes your destiny also play, sometimes your environment, your family conditions also play a role, but the most important role which is played in shaping your career or shaping your life is your hard work. So hard work तो you have to do, और सिर्फ बैठ करके सपने देखने से तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कोई भी देख लेगा, तो वो नहीं पूरे हो पाएंगे। So you have to buck up, you have to fasten the belts। और देखिए सक्सेस कई बार क्या होता है, लेजी लोगों को मिल भी जाती है, कभी कभी कुछ ऐसा डेस्टिनी रोल प्ले करता है कि मिल भी जाती है, पर पता है स्वप्निल, फिर भी वो लोग कंटेंटेड नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने सफलता का तो स्वाद चखा, पर उन्होंने उस रास्ते को तो चखा ही नहीं ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा तो प्यारा रास्ता होता है, जो जर्नी होती है। व्हेन वी गो टू सम रिजॉर्ट ऑल्सो, तो हम सोचते हैं अरे वहाँ लॉन्ग ड्राइव भी होगी, साथ में रास्ते में कहीं रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे। सेम गोज विद लाइफ ऑल्सो। लाइफ में जहाँ हम पहुँच जाते हैं, उससे ज़्यादा आज आप सोच के देखो कि आपकी इस बिजनेस की क्या जर्नी रही होगी। जब आपने सोचा होगा डे 1 से, जब आपने आइडिया कंसीव किया होगा, कैसे स्टाफिंग की होगी, कैसे ब्रांडिंग की होगी, नाम कैसे डिसाइड किया होगा, उसका लोगो कैसे डिज़ाइन किया होगा, हेल लॉट ऑफ थिंग्स यू मस्ट हैव गॉन थ्रू टू रीच हियर। अब सीधा ही यहाँ पहुँच जाते तो इसको क्या एंजॉय कर पाते। तो जर्नी का अपना अलग मजा है। सो लेजी पीपल प्लीज गेट अप and you will achieve all your dreams, आपके ambitions पूरे होंगे, लेकिन इस रास्ते का भी तो मजा लीजिए।
मेहनत करो, मेहनत हार्ड वर्क, करो। देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू हार्ड वर्क. Right. ऑल्सो मैम मेनी पीपल स्ट्रगल विद फाइंडिंग देयर पर्पस इन लाइफ. मतलब वो स्ट्रगल करते हैं. उसके अलावा अ लॉट ऑफ पीपल, उन्होंने अपनी क्राफ्ट को बहुत टाइम दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत मेहनत करी, बट उनको फिर भी सक्सेस नहीं मिल पाती. तो हाउ कैन दे गेट देयर लाइफ बैक ऑन ट्रैक? ये देखिए, ये अपने इंडिया में एक्चुअली थोड़ा सा ये सिस्टम होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 साल तक आते आते बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है. अब तो ना 19-20 हो गया. हाँ, अब तो और जल्दी हो गया है. राइट राइट. जबकि हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि पीपल स्टार्ट देयर करियर इन सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ. उनको अभी तक ऐसे लग रहा था कि यार अभी तक जो हम कर रहे थे वी वर नॉट हैप्पी, वी वर नॉट मेंट फॉर इट. तो दे स्टार्ट KFC की स्टोरी जैसे हम जानते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट ही स्टार्टेड. एंड देन अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं बमन ईरानी एंड पंकज त्रिपाठी, कितने सारे ऐसे लोग हैं एट अ वेरी एल्डरली एज दे स्टार्टेड देयर करियर. सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि आपको कई बार पता नहीं लग पाता कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ. तो उसमें ये कर सकते हैं कि फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू एनालाइज योर कैरेक्टरिस्टिक्स. हर इंसान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे कि सपोज मुझे बचपन में सबने कहा कि अरे कितना बोलती है कितना बोलती है. माय मम्मा यूज टू गेट इरिटेटेड समटाइम्स, क्योंकि मम्मा को लोग को तो घर का काम करना होता है ना. तो पापा मुझे बिठा लिया करते थे कि भाई चलो अपनी स्टोरी सुनाओ, पापा आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में वो हुआ. तो मुझे लगा यार मुझे सब बोलते हैं कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो आई शुड टेक इट एज अ पब्लिक स्पीकिंग. आई शुड टेक एज अ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड दैट आई कैन बी अ पब्लिक स्पीकर. So what I am telling to say here is, first thing is try to understand by your characteristics that what can be a good career for you. Suppose a person who is very techno savvy and who loves to sit on computer all the time, उसे उसके पेरेंट्स बोले तो स्पोर्ट्स पर्सन बन जा, he will not become a sports person. His characteristics, because every person is born different. एक पत्ता होता है उसका डिज़ाइन भी सबका अलग होता है. हमारे हाथ की उंगलियां भी डिफरेंट साइजेस की हैं. सो एवरी पर्सन इज बॉर्न डिफरेंट. सो फर्स्ट थिंग इज, इन स्पाइट ऑफ चेजिंग समवन एल्स, ट्राई टू फाइंड योर पर्पस बाय योर कैरेक्टरिस्टिक्स. कि मेरे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनबॉर्न, उससे मैं अपना करियर पता करूँ. सपोज नहीं पता चल पाता, तब भी नहीं पता चल पाता. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन एज तक आने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू फाइंड दैट मैं किस लिए बना हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. So in that case, they have to experiment. So they have to experiment 2 or 3 things. They need a good counselor or teacher जो उनको ऑब्जर्व करके, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करके उनके लिए 2 या 3 कुछ अच्छे आइडियाज़ या कुछ अच्छे लाइन्स ऑफ करियर दे कैन सिंप्लीफाई, कुछ सिलेक्ट कर सकें. And then once you are into the job for 6 months, 8 months or a year, you get to know whether I am made for it or not. तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन होता है. लकी आर दोस्त जिन्हें बहुत कम एज में पता लग जाता है कि मुझे क्या करना है. And they are very few. पर ज़्यादातर नहीं हो पाते हैं. उसके बाद कई बार होते भी हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, बट आप ये पता कर लेंगे ना, आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ गोइंग थ्रू दिस. Most of the young people are going through this. So do not compare your journey with anyone's journey. Because somebody, जैसे बोलते हैं ना कि somebody may be a CEO at the age of 25 and somebody may have started the career at the age of 30. But we cannot compare actually, क्योंकि हर किसी को समय और भाग्य के साथ ही सब मिलता है. और हर इंसान का जीवन में एक टाइम स्लॉट आता है. हमारी लाइफ का टाइम सेपरेटली चलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में जैसे आपको बताऊँ, तो आई क्वालिफाइड माई नेट, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन फर्स्ट अटेम्प्ट. बहुत रेयर होता था कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले, तब तो बहुत ही कम ऐसा होता था. जस्ट आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई अटेम्प्टेड एंड आई क्लियर्ड. तो मैं खुद पढ़ते ही तुरंत लेक्चरर बन गई थी और तुरंत पढ़ते ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि PhD मैंने 6 साल के बाद एनरोल कराया. तो सब लोग मुझे कहते हैं कि अरे तुमने 6 साल क्यों डिले किया PhD. बट आई फील एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट टाइम स्लॉट इन लाइफ, और वो समय के साथ ही सब होता है. बट डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड योर पैशन इन लाइफ. और जो आपका पैशन है अगर उसी को करियर बनाएंगे ना, तो फिर नथिंग लाइक इट.
अभी आपने बोला आप एक्सट्रोवर्ट हो, तो एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट गाय. जैसे कि कोई मुझे इवेंट्स पार्टी किसी में बुलाता है तो 90% ऑफ द टाइम आई कम अप विद एन एक्सक्यूज़, मैं बहाना बना देता हूँ, मैं नहीं जाता. बट आई ऑल्सो एस्पायर टू बी अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट आई रियलाइज़ कि मेरे को खुद को आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन रख के सोशल गैदरिंग्स में जाना पड़ेगा, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी. बिल्कुल नॉट नेसेसरी. स्वप्निल, वेरी गुड. आई एम रियली लाइकिंग इट. See, the best example we have is Narayan Murthy. Sudha Murthy ji speaks. She comes to stage, she speaks a lot. Narayan Murthy never speaks. He's such an influential businessman. So no need to change your characteristic. If you are born with the characteristic of being an introvert, no problem. Introverts have their own personality. और especially I feel boys तो introvert बहुत अच्छे लगते हैं. और ऐसा क्यों? It gives a kind of message about their personality that they are very observant. They are observing the things and they are very calm. So it adds lot of value to their personality. और बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट हैं तो कि दैट गाय इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग, जबकि वो सामने वाला तो एकदम शांत बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दोनों पर्सनालिटीज़ जो हैं उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपना ग्रेस है कहना चाहिए, अपना चार्म है. तो एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो जाते ही तुरंत से कहीं पार्टी की जान बन जाते हैं. दे गो विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे टॉक टू एवरीवन. उनकी बैटरी वैसे रिचार्ज होती है. हाँ, उनकी बैटरी वैसे ही रिचार्ज होती है. राइट. बट जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं दे ऑब्जर्व लॉट ऑफ थिंग्स. सी, आई feel I am so extrovert, but my son is totally opposite to me. He's so introvert, but then at the same time he's so observant. कई बार ऐसा होता था कि हम लोग पुष्कर बहुत जाते हैं ड्राइव करके. कई बार ऐसा होता था अजमेर तक आते आते मुझे लगता था बच्चा गिर तो नहीं गया, गाड़ी में बैठा भी है कि नहीं. तो मुझे पूछना पड़ता था, भाई आर यू देयर इन द कार, बिकॉज मुझे लगा अजमेर आ गया, अभी तक इसकी एक आवाज़ भी नहीं निकली है. तो कुछ भी नहीं. बट आई फील वो पूरे रास्ते में क्या क्या है ही इज ऑब्जर्विंग वॉट ऑल इज गोइंग अराउंड. सो ही हैज़ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, साइंस. ही ऑब्जर्व्स. अब मुझे नहीं पता, मैं आपका सेटअप देख रही हूँ, मैं सिर्फ इतना देख रही हूँ बहुत अच्छा सेटअप है. अगर वो होगा तो शायद वो ये भी ऑब्जर्व कर लेगा कि ये कौन सी लाइट थी, LED लाइट थी या हेलोजन लाइट थी या इसका क्या. सो आई फील इंट्रोवर्ट पीपल हैव देयर ओन चार्म और ओन ग्रेस बिकॉज दे आर lot of things go within them. अंदर उनके बहुत कुछ चलता है. तो अंदर बहुत कुछ चलने से उनकी इंटेलिजेंस, उनका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो डोंट चेंज योरसेल्फ फॉर एनीवन हु सेज, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, कम जो बोलते हैं उनके लिए ऐसे बोलते हैं वो बड़ा अकड़ू है, ये तो बहुत. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी and every personality. And then also Swapnil, I will say, after being an introvert you can become very influential. That is why I'm putting myself in these situations, like podcast करना. I don't have to go out and 100 जनों से बातें करनी है, but to talk one on one. That's why I'm putting myself ऐसी सिचुएशंस में. अब आप देखिए कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप पॉडकास्ट के माध्यम से. अगर आप किसी पार्टी में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों से मिलेंगे, लेकिन आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं. दिस पॉडकास्ट, if it is available on social media, there is no end to it. Sky is the limit. क्या पता है इसे लाखों लोग देख लें, millions of views it gets. So अगर इतने लोग इसको देख लेंगे तो आप कहाँ घर बैठे हुए कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. And sometimes your work speaks. You don't have to speak. जैसे कि this is very काफ़ी comfort zone के बाहर है मेरे. I'm doing this to improve myself. तो ऐसे ही what do you think कि how important it is for people to put them out of their comfort zone in order to develop or to get the success? Yes, coming out of comfort zone is very important because कंफर्ट जोन से बाहर आने का ये मतलब नहीं है टू चेंज योर पर्सनैलिटी. इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट यू हैव टू बिकम एक्सट्रोवर्ट, नो. बट येस, कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है you are ready to adapt the changes and you are ready to go to the learning zone. because ये कुछ zones हैं जो हम पढ़ाते भी हैं कि there is a comfort zone, then there comes a learning zone and there comes a growth zone. बिकॉज ग्रोथ के लिए आपको लर्निंग के प्रोसेस से तो जाना ही पड़ेगा. सीधा कंफर्ट से ग्रोथ पे तो नहीं पहुंच सकते. यू कैन नॉट जंप. सो फ्रॉम कंफर्ट जोन टू ग्रोथ जोन यू हैव टू गो वाया
लर्निंग जोन. तो आपको कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा, बट नॉट टू चेंज योर पर्सनैलिटी, बट टू लर्न समथिंग एंड टू अडेप्ट द चेंजेस. ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल चेंजेस आर कमिंग विद विंक ऑफ एन आई. आप देखिए कितना जल्दी दुनिया बदल रही है. अगर हमने सोचा कि आई विल नॉट अडेप्ट द चेंजेस, तो फिर तो आप नहीं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव. You have to come out of your comfort zone to adapt the changes. जैसे मैं भी ये फील करती हूँ कि जब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किया था तो देयर वाज अ ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, देन केम द एरा ऑफ वाइट बोर्ड्स विद मार्कर्स. तब भी हमें तो बहुत डिफिकल्ट लगा था इस चेंज को अडेप्ट करना, क्योंकि चौक तो कभी खत्म नहीं होते, कितने भी मंगा लो. मार्कर को मेंटेन इन द सेंस उसकी इंक खत्म हो जाती है, उसमें वापस से आप रीफिल करिए. तो क्या होता था, हर टीचर्स को लिमिटेड मार्कर्स मिलते थे, और डस्टर जो होता था, मार्कर का डस्टर, उस पे भी नाम लिखा हुआ मिलता था, ये आरती मैम का डस्टर है. तो वो भी एक रिस्क रहता था कि भाई खो नहीं जाए, अरे मेरा डस्टर कहाँ. कुछ टीचर वो डस्टर फेंक के मारते थे. गुस्सा होते थे तब. दैट्स वेरी बैड. एंड उसके बाद स्मार्ट बोर्ड्स का जब आया तो हमें भी बड़ा एकदम से लगा. उसके बाद हमें लगा अरे अच्छा, हमें वी हैव टू मेक आवर पीपीटीज. तो मुझे लगता था कि जब हम लोग, क्योंकि हम लोग ओल्ड स्कूल टीचर्स थे, तो जब हमने पीपीटी बनाना स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि उस समय तो हमें लगता था ओह सच अ बिग थिंग वी हैव डन, और हम ऐसे जाते थे स्टूडेंट्स के सामने, आई हैव कम विद अ पीपीटी टुडे, एंड सी टुडे पीपीटी इज आल्सो आउटडेटेड. सी so many AI tools. So here I mean to say coming out of comfort zone means blackboard to whiteboard to smartboard to AI tools. So that means whatever coming your way in your career, try to adapt it. That is coming out of comfort zone. Comfort zone doesn't mean to change your personality, but yes, to adapt whatever is coming your way. Okay. आप स्कूल के अंदर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी मैम? I teach business administration. Okay. And I specialize in business law and management. Okay. और स्कूल और कॉलेज में which one you found better? मेरे स्कूल के बच्चे नाराज नहीं हो जाए मुझसे, बिकॉज स्कूल में मैंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया. ओनली 2005 and 6, 2 years I was in school, and I taught in school in 5 and 6, and then 2006, as I told you, in first attempt I qualified my NET, and NET is for teaching in college. So in 2007 I shifted to college. So 7 to 23 I am teaching in college. So a very big part of my life, rather I must say so many years of my youth I have given to teach college students. तो स्कूल स्टूडेंट्स को थोड़ा कम पढ़ाया है मैंने, और हालांकि मेरे स्कूल स्टूडेंट्स के साथ मेरा बॉन्ड अभी तक है. और थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई विश टू से हाई टू ऑल माई स्टूडेंट्स whom I taught in 2005 and 6. उनसे मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत यंग थी. अच्छा, उस समय मैं अनमैरिड थी, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, तो आई हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड विद देम. बट एज फार एज द सिस्टम ऑफ टीचिंग, द सिस्टम कह लीजिए, वो मुझे कॉलेज का बेहतर लगता है. क्योंकि इसलिए बेहतर लगता है कि एक तो ये कि कॉलेज में ओनली 2 स्टूडेंट्स विल सिट इन योर क्लास हु वांट टू स्टडी. तो उनको, जिनको नहीं पढ़ना, दे हैव कैंटीन, दे हैव स्पोर्ट्स एरिया, दे हैव कॉमन एरिया. स्कूल में सबको बैठना है. अब सबको बैठना तो है, लेकिन वो 2-4 को परेशान भी करना है. हालांकि वो मैं एंजॉय भी बहुत करती थी, वो टीचर्स एंजॉय करती हैं नॉटी बच्चों को. लेकिन उसमें क्या होता था कि सिस्टम लकूना ये था कि प्रिंसिपल विल ऑल द टाइम कीप अ चेक, keep an eye on new teachers, especially on young teachers. क्लासरूम के बाहर से वॉक करके जाते हुए देखते हुए, आपकी क्लास में ऐसा था, आपकी क्लास में वैसा था. तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत शेल में रहते थे. वी कुड नॉट बी आवरसेल्व्स. मुझे लगा कॉलेज में आकर के आई कुड बी माई सेल्फ. मैं वो स्टूडेंट्स के साथ बॉन्ड बना पाई जो मैं हमेशा से बनाना चाहती थी. और उसके अलावा तो बाकी भी बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मच लेसर इन कॉलेज. सो कॉलेज में यू कैन बी मोर ऑफ योर सेल्फ. बाकी स्कूल का अपना मजा है, कॉलेज का अपना मजा है, बट आई एंजॉयड कॉलेज मोर बिकॉज आई हैव स्पेंट मोर टाइम इन कॉलेज. Okay. Ma'am, what do you struggle with?
See, there are lot of struggles. Swapnil, struggles तो बहुत आते हैं, and especially I wish to tell your audiences that those who think that teaching is an easy job, क्योंकि सालों पहले ऐसा ही समझा जाता था, अरे लड़कियों के लिए तो टीचिंग, it is not easy. It is not easy at all. What all challenges we face? I'll speak about 2-3 challenges. First challenge is lot of expectations, not only from students but their parents and the management of school or college, whatever it is. There is lot of expectations from the teachers. तो जब कोई पूछता था ना कि बच्चों की छुट्टी है, तुम जाके क्या करोगे कॉलेज, तो मुझे इतनी हंसी आती थी. मैं सोचती थी यार ये सोचते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ लिखना ही टीचर्स का काम है. तो लोग अभी तक भी ऐसे ही सोचते हैं कि अरे बच्चों की छुट्टी है तो तुम क्यों जा रहे हो. अरे वी हैव टू डू एंडलेस टास्क. व्हाट ऑल मैनेजमेंट यू सी इन स्कूल एंड कॉलेज, वो अपने आप नहीं होता है, वो टीचर्स को करना पड़ता है. वी हैव टू मेक द lesson plans, we have to make the how the syllabus will go, we have to plan activities for the students, we have to plan so many events, that too at such big levels. Then we have to plan for the companies coming in for training and placement of the students. Then we have to make so many attendance registers. We ourselves have to go through faculty development programs, because when we studied in 20 years back or maybe 22 years back, now whatever we are teaching is different. So we also have to go for development programs, we have to go for research, we have to write research papers, we have to attend lot of conferences, we have to make notes for the students, presentations for the students. तो lot of things are there. Then parents की भी बहुत सारी expectations होती है और management की भी बहुत सारी expectations होती हैं. Then students come with lot of personal problems also. That also we have to cater. And most important struggle or problem I faced as a teacher is my throat. And I think most of the teachers go through it. स्वप्निल, आप believe नहीं करोगे, मैंने अपनी life में कितनी ऐसी teachers देख ली हैं जिन्होंने पढ़ा कर who have lost their voices, who have completely lost their voices. Trust me, ये तो माइक्रोफोन एंड ऑल का ज़माना अब आया है, और वो भी हर जगह नहीं आया है, कुछ स्कूल कॉलेजेस में है. द क्लास फुल ऑफ 60 स्टूडेंट्स एंड द लास्ट स्टूडेंट, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच should be able to hear what you are saying. People say that teachers are very loud. They have to be loud. हाँ, होना पड़ता है. And 8 years back I lost my voice. I was whispering. So मैं अगर आपसे बात करती थी तो मैं सिर्फ whisper कर सकती थी. I could not speak. I went to 3 ENT specialists because I was under such a depression, because I thought teaching and training is the only thing I can do in life. So if I do not have voice, what will I do? मुझे लगा मैं तो बेरोजगार हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. So they told me that it is a very very common symptom, जिसका नाम ही teacher's throat है. उस बीमारी का if you find देयर इज अ साइंटिफिक नेम, लेकिन उसे आम भाषा में टीचर्स थ्रोट ही कहा जाता है, जो कि नेताओं को, अभिनेताओं को और टीचर्स को बहुत ज़्यादा कॉमन है. पॉडकास्टर्स को भी होने लग जाएगा. बिकॉज दे हैव टू स्पीक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एट हाई पिच, क्योंकि उनको पिच देखिए, एक बोलने का, आपसे बात करने का और एक पढ़ाने का पिच अलग होगा. सो स्टूडेंट्स टुडे विल बी स्टार्टिंग विद मैनेजमेट. सो द गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, students. So the pitch is very high. So he told me, and the doctor told me to take vocal rest. Do not go to college for 10 days. अब आप सोचो 10 दिन की छुट्टी कॉलेज देता मुझे, तो मैं जाकर कॉलेज में बोलती थी, बेटा मैं धीरे धीरे बोल पाऊंगी, मैं धीरे धीरे बोल पाऊंगी. तो I could not speak. And then doctor told me not to have any cold thing or any sore thing थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट. अब आप सोचिए एक टीचर का कितना बड़ा ये एक सेक्रीफाइस है. मई जून के महीने में भी हम लोग ठंडा पानी नहीं पीते हैं. आई नेवर टेक कोल्ड वाटर, नेवर. मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी कोल्ड कॉफ़ी या मोइतो या एनी कोल्ड ड्रिंक, एनी कोल्ड थिंग आई हैव एवर taken, never. Sacrifices for the students. For the students, so that I keep this voice and I at least keep inspiring people and teaching people for few more years. I think ये अभी तक का सबसे
लॉन्ग पॉडकास्ट हो गया होगा, है ना? हाँ, क्योंकि मज़ा आ रहा है मैम बोलने काफ़ी, वाले लोगों को तो बुला लिया। नहीं नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो व्हाट वन एडवाइस यू वुड गिव मी बिफोर वी क्लोज अप? So first thing is before any advice, because advice देने वाले तो मांगो एक मिलते हैं 1000 एडवाइस नहीं, आपसे चाहिए मैम एडवाइस, इसलिए तो मांग रहा हूँ। बट ऑनेस्टली एडवाइस से पहले आई विल गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट एंड देन फॉलोड बाय एडवाइस. Compliment is at such a young age you are doing so many things. See Swapnil, success is a secondary thing. That will come later and that will definitely come. But अभी आपने at least you have started a journey और आपने एक रास्ता पकड़ लिया. आप भी जानते हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो कि आपकी एज के जो यूथ है, हाउ डिस्ट्रैक्टेड दे आर इनटू सो मच ऑफ एल्कोहलिज्म और बहुत ज़्यादा. तो ये जो रास्ता है ना, ये नशे वाला स्पेसिफिकली, क्योंकि यूथ के लिए ये मैसेज है, मैं ऐड कर रही हूँ. ये जो नशे वाला रास्ता है ना, ये सिर्फ वन वे है, देयर इज़ नो कमिंग बैक. और मैंने इतने सारे अपने स्टूडेंट्स देखे हैं जो आना चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक, दे प्लीड. सम ऑफ आवर मेल कलीग्स दे टेल अस कि मैम लड़के आकर के कहते हैं हमें कि वी रियली वांट टू कम बैक बिकॉज वी आर फेसिंग लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस, बट वी आर अनएबल टू कम बैक. अगर ऐसे टाइम में आप देख ही रहे हैं कि यूथ, कुछ यूथ बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, अगर ऐसे टाइम पे आप you're an entrepreneur, you're a podcaster, and you're doing so many, you're a sports person, you're doing so many things, you actually deserve an applaud. Thank you so much, give you ma'am. an applaud, क्योंकि अगर इस जनरेशन को आपकी तरह एक डिस्ट्रैक्शन से हट करके एक जर्नी भी मिल जाए ना, so that is okay. Success will definitely will come with time. So first of all is I would applaud for you. फाइनली टीचर से तारीफ मिल गई. आपको तो हमेशा मिली होगी स्कूल में भी, डेफिनेटली. एंड देन एडवाइस इज कीप गोइंग. नेवर फील दैट here I have faced failure, so this is not this is the end of journey and I am not going anymore. Don't think like this, because failure is a part of your success journey. So sometimes you win and sometimes you learn. There is nothing called failure. Sometimes you win and sometimes you learn. So keep learning, keep moving. बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे लाइफ में, हमारे भी आते हैं अभी तक भी, जब आपको सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन, एंजाइटी का फीलिंग आएगा. मैं ये कर रहा हूँ, मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं. बट डोंट थिंक लाइक दिस. Keep on moving on the way you have chosen. Definitely success will come to you because you are not distracted and you are following a path. That is only thing that is important for you. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट मीन्स अ लॉट, आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आए. थैंक यू सो मच. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. न्यू एपिसोड सून. बाय बाय. Thank you so much.